Okay. So is my voice audible to you all? Is everyone? Yes, ma'am. Okay. So in the last class, we have studied about the bubble sort algorithm. Then what was the change which was required in the bubble sort? What was that unwanted thing which was happening and which is not needed? And for that reason, the optimized bubble sort came into exam scenario, right? We have studied these two topics. Today we will start with the selection sort. Okay. Now, how does the selection sort theoretical concept, what is the there? Suppose this is the array elements which I have provided. My number of elements is 6. Okay. So first we need to do what? We need to find out the minimum element. First step, find out the minimum element from the entire array. Second step is that element will be swapped with whatever the element is there at the first location of my array. Swap this element with the element at starting location of the array. Now, this starting location of the array means in the unsorted part. That means each and every time two concepts are there. One portion of my list of I will refer to this array as list, okay, several times. Do not get confused. Just this array I am referring to as list while I am talking. So one portion of my list will always be sorted. Another portion of my list will always be unsorted. And my motto is to find the minimum element from my unsorted list and then swap its position with the first position in my unsorted list. Okay. Now, for the first step, this to this is the unsorted portion for the very first step, and this is the sorted portion. That means my entire array is unsorted for the first instant, right? So initially the sorted list is an empty list because no element has been found. Now, what will happen in pass 1? What will happen in pass 1? What will happen? What is the first step? You need to interact, otherwise there is no point in taking these classes. Again, I am repeating, you need to interact. Else I will just remove all the participants who are not interacting. I will just upload this video. There will be no point of interaction and there will be no clarification also in future in any of the topics from my side.
If you do not interact, then there is no point in taking the classes. So say. Ma'am, repeat, ma'am. What will happen in pass 1 if you follow this logic? What will happen in pass 1? Ma'am, 1 will swap with 7. Fine. 1 will swap with 7. Very nice. So 1 will come in the first position. Rest will be as it is. And this is the 7. Now anyone tell what is in my sorted list and what is in my unsorted list? Ma'am, what? What is there in my sorted portion and what is there in my unsorted portion? Ma'am, 1 is sorted and other else So are unsorted. this is the portion which is sorted, and from here to here it is unsorted, right? Then again what we need to do? In pass 2, what will happen? We swap 4 and 7. 4 and No, 7. No, 3 ma'am, and 4 4. and 10. 4 and 3 and 4. 3 and 4. So 1, 3, 10, 8, 4 and 7. Again, this is your sorted list and this is your unsorted list. In pass 3, what will happen? 4 will swap with 10. This is your sorted list. This is your unsorted list. So in the next pass, what will happen? In pass 4, 7 will swap with 8. 7 will swap 8. 7 will 7 and 8. 8. So again, this is my unsorted and this is my unsorted. And then again, in the last pass, 1, 3, 4 and 7, 8 and 10. Then this is my sorted list. This is my unsorted list. And when I am left with one element, I do not need to compare anything. Only one element is left. So the result is 1, 3, 4, 7, 8 and 10. This is the final result. Now what is happening? At each and every step, you are doing two things. You are finding the minimum element from the entire your unsorted list and you are swapping the positions of the first location and the minimum element. If the minimum element is found at the first position, that is also not a problem. We will keep it there. Swap with that position only, right? So if you notice at pass 1, one element is sorted. At pass 2, 2 elements. At pass 3, 3 elements. So at each and every passes, number of elements are sorted. Pass 1, 1, pass 2, 2, pass 3, 3. So this is the concept. One element is already sorted. So one by one, the sorted elements are taken out of the comparison and only the unsorted elements are taken into comparison. This is one concept. Second concept is what? Here also two loops will be there. One will be the outer loop, which will only calculate or will keep track of the passes, number of passes, the work of I, one outer loop. And one inner loop will be there, which will do what? Which will find out the minimum element and it will do the swapping of the elements. This portion is clear, yes or no? Yes, ma'am. So Yes, if I write the section of code, let me just write it and just me apply this code also. So one pass is there. Can anyone say why I wrote n-1? Seeing this. Why here the outer pass
I did not say that I is lesser than n. By n minus 1 I said. Why? मैम लास्ट में कोई कंपैरिजन नहीं हुआ इसलिए। राइट, लास्ट में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, मतलब मेरा हमेशा जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा मेरा एक कंपैरिजन हमेशा कम रहेगा, है ना। देखो 5 कंपैरिजन से 1 2 3 4 5, इसलिए तो n minus 1. दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट विच वाज देयर इन बबल सॉर्ट आल्सो, सेम थिंग। फिर इसके भीतर हम ले रहे हैं इंट मीन इंडेक्स। स्टार्टिंग में तो हम आई पकड़ के चलेंगे, इसके भीतर हम इनर लूप कर रहे हैं। इनर लूप पे मेरा क्या है, कोई बोल सकता है हम इनर लूप i+1 क्यों लिए? आउटर लूप हम यहां से यहां लिए, तो इनर लूप हम यहां से यहां क्यों लिए? एनीवन? क्योंकि मैम पहला वाला सॉर्टिंग हो गया है इसलिए। सो पहला वाला सॉर्टिंग हो गया है, इसलिए हम लोग हमेशा एक ऊपर करके ले रहे हैं, नेक्स्ट वाले पे इंटरेस्टेड। फाइन। अच्छा, यहाँ पे ना हम जस्ट एक लाइन कमेंट लाइन लिख दिए, यहाँ पे स्वैप ai एम इंडेक्स, मतलब तुम्हें वो चीज पूरा लिखना है। हम लोग कैसे स्वैप करते हैं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हम लिखे ना बबल सॉर्ट में, टेम्प लेंगे, टेम्प के भीतर ai को लेंगे, ai के भीतर एम इन इंडेक्स को बैठाएंगे, फिर एम इन इंडेक्स के भीतर टेम्प को बैठाएंगे। जैसे मेरा 3 लाइन्स ऑफ कोड है फॉर स्वैपिंग, आई नीड टू राइट ओवर हियर द 3 लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, हम यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं कि यहाँ पे हमें स्वैप का कॉन्सेप्ट इस पोर्शन में लिखना है। तुम लोग ये कमेंट देके स्वैप लिखोगे तो वो कमेंट हो जा रहा है, स्वैपिंग नहीं होगा। दिस इज फॉर थियोरेटिकल एसेंस आई रोट, बट इन प्रैक्टिकलिटी और when you will do it in the computers, you need to write the code, the 3 lines of code for the simplest using third variable swapping of 2 elements का जो concept है, वो concept तुम्हें using this element and this element you need to write. Now using this algorithm, let us see whether we have done the right thing or not, or how the flow of program is happening. Okay, fine. Okay, now suppose my program was what was the things, 7 4 10 8 3 1 7 4 10 8 3 1. Fine. Then for this array, for first हम start कर रहे हैं. What will be your value of I for the first location? 0. 0. What will I check? Is 0 less than 5? है ना, n आपका 6 है, 6 number of elements है. Is 0 less than 5? Yes. If it is yes, I will enter into this loop, right? लूप के भीतर हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन इंडेक्स का वैल्यू हम लोग दे रहे हैं
is equal to I. What is the value of I? 0. 0. Fine. Then I will enter into this loop. Then what is the value of j? 1. Fine. Is your 1 less than 6? True. Right? We are doing this condition checking. If it is true, again I will enter into this loop. Right? After entering in this loop, what I will check? I will check the value which is saved in my mean index. Is it smaller or greater than the value which are there in subsequent j indices? That means I will start the checking. So the value at my A of mean index is what? Zero. Value at A of mean index is 0. 4. ठीक है, ये लाइन हम नहीं सिखाएंगे अभी. एरे का चैप्टर थोड़ा हुआ है, 2 प्रैक्टिकल क्लासेस भी हुआ है, बबल सॉर्टिंग हुआ है. इसके बाद इस स्टेप का वैल्यू क्या आएगा तुम लोग खुद से बताओगे. इसमें हम कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे. Then there is no point in studying all these things. तुम्हारे It will come 1. 1, ma'am. नहीं, Ma'am, at last it will 1 now. After if. मीन इंडेक्स में वैल्यू क्या है? 7 मैम. 4. मीन इंडेक्स में वैल्यू क्या है? Ma'am, are you asking next step or final step? सिर्फ नेक्स्ट स्टेप ही आस्क किए है बाबा, फाइनल पे अभी गए ही नहीं है. मीन इंडेक्स में वैल्यू क्या है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट इज द वैल्यू एट योर मीन इंडेक्स वेरिएबल? Ma'am, it's 0. Right. So if your mean index value is 0, this is a location value. Then what is the value of the element at this 0th location? 7. 7. तो 4 1 0 कहां से आ रहा है? इतना 7 होगा. सेम लॉजिक यूज करके what is the value of your element at jth location according to what jth value you have got for the first step? Ma'am, 4. फाइन. अब कंडीशन चेकिंग क्या है मेरा? कंडीशन चेकिंग है मेरा जे का जो एलिमेंट्स है, तुम दोनों में से लिख सकते हो. तुम्हारा अगर मीन इंडेक्स का जो वैल्यू लोकेशन में जो डेटा है वो अगर बड़ा है, मतलब वो तुम्हारा मीन नहीं रहा है ना. या फिर तुम्हारा जे लोकेशन में जो वैल्यू है वो अगर छोटा है, मतलब तुम्हारा फर्स्ट लोकेशन में जो वैल्यू है वो मीन नहीं है. सिंपल थिंग. हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग पहला स्टेप के लिए ये मीन पकड़ ले रहा है. देखो, हम लोग पकड़ लेते हैं कि यही मेरा मीन है, और हम लोग J1, J2, J3, J4, J5 इसके लिए हर एक बार चेकिंग करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे. अगर मेरा पहला लोकेशंस में जो वैल्यू है उससे अगर कोई छोटा वैल्यू आता है तो फिर तो मेरा पहला लोकेशन मीन इंडेक्स नहीं रहा. मेरा जहां पे एक छोटा वैल्यू आ जाएगा वहां पे मेरा मीन इंडेक्स का वैल्यू अपडेट हो जाएगा. यस और नो? हम सपोज एक लिस्ट मान के चले हैं. सपोज 5, मेरे पास 5 घर है. हम सबसे छोटा वाला जो घर है उसको
चक चक लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम पहला घर में गए, मान लिए उसका बजट लिए ये 20 लाख का है। नेक्स्ट घर में गए, ये 30 लाख का है, छोड़ दो। नेक्स्ट घर में गए, ये 18 लाख का है। अच्छा, तो हम तीसरा मेरा सबसे छोटा हो गया 18। अभी चौथा पे गए, ये 12 लाख है। अच्छा, अभी मेरा 12 हो गया मेरा सबसे छोटा। मतलब हम पहले को बजट ले लिए, पहले को ही हम सबसे छोटा मान लिए, उसके बाद हम हर एक घर में जाके जाके कंपेयर कर रहे हैं, इससे भी क्या मेरा कभी छोटा घर है? अगर छोटा घर है तो फिर हम उसको छोटा घर कहेंगे, इस पहले वाले को नहीं बोलेंगे। और अगर मेरा छोटा घर नहीं है तो मेरा पहले वाले ही मेरा छोटा घर है। इज दिस कॉन्सेप्ट यस और नो? बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। तो फिर हम पहले स्टेप के लिए मेरा देखें कि मीन इंडेक्स में मेरा वैल्यू 7 है और ए ऑफ जे में मेरा वैल्यू 4 है। अब तुम लोग बोलो तो मेरा छोटा अभी मिला या फिर पहले का ही मेरा छोटा है? 7 मेरा छोटा है या 4 मेरा छोटा है? 4 मैम। 4। तो अगर मेरा ए ऑफ जे का जो वैल्यू है 4, इट इज लेसर देन ए ऑफ मीन 7, इट इज ट्रू। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मीन इंडेक्स का वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 में मेरा जे में क्या है? मेरा जे का वैल्यू क्या है? कौन सा लोकेशन है? 1। तो मीन इंडेक्स को हम 1। हाँ, मीन इंडेक्स को हम अभी 1 लिखेंगे, क्योंकि 7 से तो कोई छोटा हमें मिल गया है। अगेन आई विल गो एंड इंक्रीमेंट, यहां से फिर यहां जाएंगे जे प्लस प्लस, इनर लूप पहले सारा रन करेंगे। अब जे मेरा 1 से हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इज लेस देन 6, ट्रू। फिर से हम लूप के भीतर घुसेंगे, घुस के क्या करेंगे? ए ऑफ 2 में जो वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर ए ऑफ मीन में जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो ए ऑफ 2 में जो वैल्यू है वो क्या है बोलो? मतलब ए ऑफ 10। में जो वैल्यू है जे है, और ए ऑफ मीन में अभी क्या वैल्यू है? 4। अब तुम बोलो, नया वाला जो एलिमेंट है वो क्या मीन से मेरा छोटा है? नो मैम। नो मैम, छोटा नहीं है, मतलब इसको अपडेट नहीं करेंगे। इस स्टेप से फिर से जे प्लस प्लस में चले जाएंगे। अभी मेरा जे 2 से हो जाएगा 3। 3 इज लेस देन 6, यस। फाइंड आउट ए ऑफ जे में मेरा क्या है और ए ऑफ मीन में मेरा क्या है? बोलो तो दोनों में क्या है? मीन मेरा 4 है मैम, और जे मेरा 8 है। परफेक्ट। अब बोलो तो नया वाला जो एलिमेंट लिया वो क्या मीन से मेरा छोटा मिला और भी छोटा कुछ? नो मैम। नो। फिर इस स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अपडेट नहीं होगा मीन। मेरा छोटा तो नहीं मिल रहा है, छोटा मिलने से मेरा अपडेट होगा। फिर से जे प्लस प्लस कर दिए, 4 लेसर देन 6, ट्रू। लूप में घुसेंगे, फिर बोलो तो ए ऑफ 4 में मेरा क्या है और ए ऑफ मीन में मेरा क्या है? A4 मैम 3 एंड मीन है 4। अच्छा, अब तुम बोलो ए ऑफ जे में जो मिला है वो क्या मेरा इससे छोटा है? यस मैम। अगर छोटा है तो मेरा अपडेट होना चाहिए जे, है ना? यस। मतलब मीन इंडेक्स अपडेट होना चाहिए। और मीन इंडेक्स में कौन सा वैल्यू बैठेगा? जिस लोकेशन का वैल्यू में हम छोटा पाया है। तो अभी मीन इंडेक्स मेरा 1 नहीं रहेगा, मेरा कौन सा लोकेशन मीन इंडेक्स रहेगा? राइट 4, परफेक्ट। ठीक है, फिर से हम जे प्लस प्लस करेंगे। 5 इज लेस देन 6, यस। अगेन आई विल एंटर ए ऑफ लोकेशन जे में क्या है, अभी ए ऑफ लोकेशन मीन में क्या है? ए ऑफ लोकेशन जे में बताओ तो क्या है?
1. और ए ऑफ मीन में मेरा क्या है? 3. 3. अभी ए ऑफ जे में जो मिला है वो क्या छोटा है? Yes, ma'am. यस. अगर छोटा है तो हमें तो फिर से मीन इंडेक्स को अपडेट करना है. अपडेट करके क्या बैठाएंगे? जिस लोकेशन में छोटा पाए है, मतलब कौन सा लोकेशन में छोटा पाए है? बोलो तो. जे में छोटा पाए. जे का लोकेशन वैल्यू क्या है? 5. 5. 5. सो 5. ठीक है. अभी फिर से जे प्लस प्लस करते हैं. 6 इज लेसर देन 6. फॉल्स. फॉल्स होने से हम इस फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, मतलब इस स्टेप में आएंगे, है ना? मतलब मेरा फर्स्ट पास में, मेरा पास I0 में मेरा सारा एलिमेंट्स का कंपेयर करके हम वी हैव फाउंड आउट द मिनिमम एलिमेंट इन माय एरे एंड इट्स लोकेशन. नाउ आई नीड टू डू व्हाट? मेरा मिनिमम एलिमेंट जिस लोकेशन में है और मेरा पहला एलिमेंट किस लोकेशन में मिलेगा? I0 में ना. Yes, ma'am. फर्स्ट इंस्टेंस में I0 में तुम्हें पहला एलिमेंट मिलेगा. नेक्स्ट इंस्टेंस में I1 में पहला एलिमेंट मिलेगा. थर्ड इंस्टेंस में I2 में पहला एलिमेंट मिलेगा, है ना? क्योंकि हमको तो एक एक पास में इसको हम, ये मेरा सॉर्टेड हो गया, है ना? तो फिर now I will do what? Now I am checking that my mean index value, which is 5, it is not equal to my 0 value. Because suppose जिस लोकेशन में हम स्टार्ट किए हैं उस लोकेशन में ही अगर मीन है तो फिर हमें तो स्वैप करना नहीं है. If it is different locations, then we need to swap. So your I value is 0 and your mean index value is 5. Now you need to do the swappings. Swapping किसके किसके भीतर होगा? I0 में जो एलिमेंट है एंड मीन इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसका स्वैपिंग्स होगा. देखो, I में जो एलिमेंट है और मीन इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसका स्वैपिंग होगा. यस और नो? तो फिर स्वैपिंग होते ही अभी क्या बैठेगा? 1, 4, 10, 8, 3 and 7. क्लियर? अभी मेरा कहां पे जाएगा? फिर अभी मेरा यहां से लेके कर्सर मेरा यहां पे जाएगा. जाके मेरा क्या होगा? I प्लस प्लस पहले होगा. तो I मेरा 0 था, अभी I मेरा क्या होगा? 1. क्यों? अब देखो ठीक ही तो हो रहा है ना. मेरा तो एक एलिमेंट सॉर्टेड हो ही गया. हमें तो अभी यहां से लेके यहां तक आउटर लूप चलाना है और उसके भीतर इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट्स के साथ, सारा एलिमेंट्स के साथ चेकिंग करना है जे लूप के भीतर और आउटर लूप चलाना है यहां से लेके यहां तक, है ना? तो पहले अभी आई इसके लिए हम लोग सारा ये चेकिंग करेंगे. ठीक. तो मेरा फिर से हो जाएगा I इक्वल टू 1. अभी मेरा कंडीशन चेक होगा. I is it lesser than 5? Yes, it's true. It is lesser than 5. है ना? If it is lesser than 5, then I will do what? I will enter into my look condition. Ma'am, we write 5 or 4. बोलो. No, ma'am. Okay. अच्छा. I think it is 4 or 5. I'm अच्छा. confused. अच्छा. तो अभी क्या करेंगे? हम लोग चेकिंग किए, ठीक है, मेरा आई अभी अपडेट होके 1 हुआ फॉर द नेक्स्ट पास. मतलब मेरा एक एलिमेंट सॉर्टेड हो गया. अभी यहां से लेके यहां तक हमें आई के लिए चलना है और आई मेरा लेस देन 5 कंडीशंस भी ट्रू है. तो हम इस लूप के भीतर घुसेंगे. इस लूप के भीतर फिर से एक ही कॉन्सेप्ट. पहले ना आई लोकेशन में जो एलिमेंट है उसको हम मान ही लेते हैं जो वो ही मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है. 10 घर है मेरे पास. पहला जिस घर पे गए उसको ले लेते हैं छोटा, कि मान लेते हैं कि यही मेरा सबसे छोटा. फिर जाके देखते हैं इससे भी कोई छोटा है. अगर है तो उस घर को हम कहलाएंगे मेरा छोटा. कॉन्सेप्ट यही है. ठीक है. 1 मिनट, जस्ट अ मिनट.
ये अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, ये खत्म करेंगे फिर से। अभी सेकंड वाला लिंक में तुम लोग जाओगे, वहां पे खत्म करेंगे फिर से, ठीक है? फाइन, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट वाले एलिमेंट को ले फर्स्ट पहले ही हम मान लेते हैं कि ये हमारा मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है। तो सबसे छोटा एलिमेंट मतलब यही मेरा मीन इंडेक्स का वैल्यू होता है। मीन इंडेक्स इक्वल टू आई बोला है, तो मीन इंडेक्स इक्वल टू 1। ट्रू, यस और नो? अच्छा, एक काम करो तो जो लोग भी प्रेजेंट हो, सारा लोग प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम डाल दो। ये मीटिंग शायद अभी थोड़ा बंद हो जाएगा। हम नेक्स्ट वाले जो लिंक दिए हैं उस लिंक पे घुसना है, ठीक है? व्हेन आई विल आस्क यू टू ज्वाइन, यू विल ज्वाइन इन दैट लिंक। All of you people, please write your name for the attendance. Okay, so those who have given their attendance, you please leave this class. You will see I have posted a link for class lecture number 12, and the link will start from 12:10. Okay, so you join in that link only at 12:10. Okay, so all of you please leave the class and join in the second link at 12:10, and we will start from here only. We will finish this algorithm and then we will start with the insertion sort algorithm also. ठीक है? Okay.